Morning student, today we will continue our chapter first in civics, democracy. In our earlier video, I had you explain history of democracy, American independence, French Revolution, main principle of democracy. Today we will continue our topic forms of democracy. Democracy के रूप. Direct democracy is a form of democracy wherein sovereignty is in the hand of the assembly of all citizens who choose to participate. जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो एक डेमोक्रेसी का रूप है जहाँ पर सर्वोच्च सत्ता सिटीजन्स के हाथ में होती है जो कि उसको चुनने में करने में पार्टिसिपेट करते हैं. दिस असेंबली माइट पास executive motion, make laws, elect and dismiss official and even conduct trials. Direct democracy stands in sharp contrast to representative democracy, wherein sovereignty is exercised by a group of people's representatives usually elected on the basis of election. जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो शार्प कंट्रास्ट जैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है उनकी जो सर्वोच्च सत्ता है वो एक्सरसाइज करती है ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा और रिप्रेजेंटेटिव जो उनके यूजुअली इलेक्ट होते हैं बेसिस ऑफ इलेक्शंस के द्वारा. मैनी कंट्रीज बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अलाउ किया गया है और इसकी 3 फॉर्म्स हैं. पॉलिटिकली एक्शंस को प्रोवाइड कराती हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में. इनिशिएटिव, रेफरेंडम एंड रिकॉल. रेफरेंडम कैन इंक्लूड द एबिलिटी टू डिसाइड वेदर अ गिवन लॉ शुड बी स्क्रैप्ड or not. This effectively grants the populace a veto on government legislation. Such recall gives the people the right to remove official from office elected before the end of their term. इस तरह से जो पॉपुलेशन वीटो है ऑन गवर्नमेंट लेजिस्लेशन में सच रिकॉल गिव्स द पीपल उन पीपल्स को राइट देते हैं टू रिमूव करने के लिए ऑफिशियल फ्रॉम द ऑफिस इलेक्टेड बिफोर द एंड ऑफ टर्म जब उनका टर्म का इलेक्शन का एंड होता है. डिफरेंसेस between direct and indirect democracy. Now we take this topic differences between direct and indirect democracy. The difference between direct and indirect democracy is fairly simple. वो सामान्य रूप से सिंपल है. Indirect democracy, citizen make decision directly by proposing laws or referendum or laws which are opposed to their interest, voting to determine who enters public office and recalling public officials who are not doing their job. यहाँ पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में सिटीजन जो डिसीजन लेते हैं डायरेक्ट और प्रपोजिंग करते हैं लॉज और रेफरेंडम को और लॉज जो कि अपोज किया जाता है यहाँ पर पब्लिक ऑफिस में और रिकॉल करते हैं पब्लिकली ऑफिशियल्स को जो कि उनकी जॉब नहीं कर रहे हैं. But in direct democracy, on the other hand, involves a small group of elected representatives who are authorized to take decision on important issue on behalf of the general masses, that is the electorate. जो कि इलेक्टोरेट के द्वारा वो इम्पॉर्टेंट इश्यूज को डिसीजन लेते हैं. इन बोथ केसेस इनपुट ऑफ द पीपल इज द cornerstone of the government, but the government who work in different ways. लेकिन दोनों में ही वर्क गवर्नमेंट डिफरेंट तरीक़ों से करती है. नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इज द बॉडी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ अथॉरिटी टू मेक एंड एनफोर्स रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशन. गवर्नमेंट एक ऐसी बॉडी है जो एक संगठित ऑर्गेनाइजेशन को अथॉरिटी देती है एनफोर्स करने रूल, लॉज और रेगुलेशन को. द गवर्नमेंट रेफर्स टू अ civil institution which can be either at the local or national level. ये लोकल और नेशनल लेवल दोनों में ही को ही रेफर करती है सिविल इंस्टीट्यूशन के रूप में. इट टेकन केयर ऑफ नीड ऑफ द पीपल विद द वेलफेयर ऑब्जेक्ट्स.
However, commercial, academic, religious, or other formal organization are also governed by the internal bodies. ये internal bodies के द्वारा इनको organized किया जाता है. Such bodies may be called board of directors, managers, or governors. All these people manage the affair of their रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन. ये सभी जो अफेयर हैं ये रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किए जाते हैं. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. मोनार्की. फर्स्ट टॉपिक इज मोनार्की मीन्स राजतंत्र. It is the rule by an individual who has inherited the rule and expect the bequeath it to her his heir. यहाँ पर ये रूल किया जाता है कि इंडिविजुअल विरासत में उन्हें शासन मिलता है, चाहे वो हिज हर या उनका शासन मेल फीमेल कोई किसी के भी अंडर हो. In this way, monarchy is a hereditary form of government in which the authority to rule passes from one heir to another to the people of the same family or even blood relation. जो इसमें जो मोनार्की सिस्टम है इसके अंदर हेरिडिटरी फॉर्म होती है, यानी विरासत में उन्हें ये गवर्नमेंट मिलती है और उनको ये अधिकार विरासत में मिलता है. एक जो सिंहासन से दूसरे को गद्दी दूसरे लोगों को दी जाती है अगर उनकी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है, यहाँ तक कि उनका ब्लड रिलेशन उनसे होना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. ए गवर्नमेंट दैट हैज अ मोनार्क हिज हर पावर आर स्ट्रिक्टली लिमिटेड बाय द पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट. एग्जाम्पल यूनाइटेड गवर्नमेंट. इसका एग्जाम्पल यूनाइटेड गवर्नमेंट है. इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में मोनार्की गवर्नमेंट में रूल किया जाता है कि राजा या रानी के द्वारा. कभी कभी राजा को एम्परर या शासक भी कहा जाता है, स्पेशली इफ देयर इज अ लार्ज एम्पायर सच आ चाइना बिफोर 1911 AD. जैसे कि लार्ज एम्पायर था चाइना में 1911 से पहले. देयर आर नो लार्ज मोनार्की टुडे. लेकिन आज वहाँ लार्ज मोनार्की नहीं है. और देयर आर नो लार्ज मोनार्की टुडे. United Kingdom, which has a queen, is actually a republic because the queen is simply a ceremonial head. क्योंकि जो क्वीन है वहाँ पर एक सिंपल सेरेमोनियल हेड है और सारी मेनली जो पावर एक्सरसाइज की जाती है लोगों के द्वारा. और वहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सिटिंग करते हैं दो हाउस जो पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, वो पर उनकी वहाँ पर उनकी बैठक होती है, तब उनका कोई रूल या रेगुलेशन बनता है. इसके वहाँ पर एक्चुअल में वहाँ पर रिपब्लिक है या गणतंत्र भी है.